Good morning, students. Today we are starting chapter number 15, that is some natural phenomena. So this is the new chapter. In this chapter we will discuss the some natural phenomena. For example, earthquake, right? So this sort of phenomena we will discuss in this chapter. Some natural destructive phenomena. Destructive means it will harm the life of human being or animals, right? So some natural destructive phenomena are like cyclones, lightning, earthquake, etc. First of all, we are discussing about lightning. Lightning is a streak of bright light and sound caused by the electric discharge between the clouds and the earth, or between two different clouds. See, this is the earth surface. Earth has always the negative charge. If cloud get strike to each other, the charge will produce in the clouds. Now, due to this positive charge and due to negative charge of the earth, there will be set of electric field, and due to this electric field the light streaks and sound cracking sounds due to the collision of clouds will produce. And when this light falls on the surface of earth, it can cause the electric shock to the human being or the animals. So this is the destructive phenomena lightning, right? Second is earthquake. It is the sudden shaking or trembling on the earth caused by the disturbance deep inside the earth crust. Now see, this is earth and the upper part of the earth is called crust. This crust is made of so many rocks. When disturbance created between the rocks, the disturbance goes up to the surface of earth and the vibration at the surface of earth takes place, due to which the buildings or houses get demolished, right? So this is the destructive phenomena. You have heard about the earthquake. इसमें ह्यूमन लाइफ को और एनिमल लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी, और उसके लाइफ से रिलेटेड थ्रेटन्स होते हैं. तो लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक कॉज द लॉट ऑफ डैमेज टू द ह्यूमन लाइफ एंड इट्स प्रॉपर्टी. अब जैसा लाइटनिंग है, इसमें क्या होता है, कई घरों में आग लग जाती है, कई लोगों की डेथ हो जाती है. और जब बिजली गिरती है लाइटनिंग, अर्थक्वेक में घर गिर जाते हैं, लोगों के घर के अंदर ह्यूमन लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो दीज आर द डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना एट द सरफेस ऑफ अर्थ. नाउ चार्जिंग बाय रबिंग, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन. फ्रिक्शन मीन्स रबिंग ऑफ टू थिंग्स. जब आप दो चीजों को रब करते हैं तो उसे कहा जाता है फ्रिक्शन. Some objects can be charged by rubbing with other object. When object is rubbed, they attract light objects like pieces of paper. This process is called charging by friction. आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत करा होगा. स्केल को ड्राई हेयर पे जब हम रब करते हैं तो द स्केल विल गेट चार्ज्ड. अब उसको आप बिट्स ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो बिट्स ऑफ पेपर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है. सिमिलरली सी हियर, व्हेन द रिफिल ऑफ द पेन इज रब्ड बाय द वूलन क्लॉथ, इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग द बिट्स ऑफ पेपर, है ना. रिफिल को अगर आप रब करते हैं तो कागज के टुकड़े उठाने लगता है. ड्राई हेयर को जब कॉम्ब से आप उसे शेप देते हैं
तो इट गेट चार्ज। अब आप पेपर पीसेज के पास ले जाओ तो ये बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। उसका कारण यह है कि ऑब्जेक्ट चार्ज्ड हो जाते हैं, चार्ज होने के कारण बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल है इसका, अ प्लास्टिक रिफिल स्केल comb when rubbed with dry hair, the paper or polythene get charged and attract pieces of paper. The charges acquired by rubbing the static charges, ठीक है ना, उस पे चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। दे डू नॉट मूव, अब जहां पे आपने रब किया वहां पे चार्ज आ जाता है और वो चार्ज मूव नहीं कर पाता, स्टैटिक चार्ज हो जाता है। तो क्या करता है, फिर पेपर पीसेस को तरफ अपने अट्रैक्ट करता है। व्हेन चार्जेस मूव दैट मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें चार्ज मूव नहीं करता, कॉम्ब में भी नहीं करता, स्केल में भी नहीं करता और इस पे भी नहीं करता, रिफिल पे। लेकिन अगर मेटल को रब किया जाए तो मेटल में चार्ज मूव करता है, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां जो वो चार्ज मूव करता तो वहां इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो जाती है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द मोशन ऑफ द चार्जेस थ्रू द कंडक्टर। जैसे मान लिया कोई आयरन की रॉड है, अब इसमें अगर आप कहीं पे चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या करेगा, उस मेटल के अंदर फ्लो करने लगता है, और जब वो फ्लो करेगा तो इसमें करंट डेवलप हो जाती है। करंट को आई से डिनोट करते हैं। अब आप इसको देखें, यहाँ पे एक बच्चा है और एक बैलून है, ठीक। अब इसके बच्चों के बालों को देखो बेटा, ये क्या कर रहा है, बैलून इसके बालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हेयर्स आर अट्रैक्टेड बाय द बैलून। हुआ क्या है बेटा कि इस बैलून को रब कर दिया गया, उसके बाद क्या हुआ, इसने इसके बालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। जैसे स्केल जो है बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसी तरीके से बैलून अगर चार्ज हो जाता है तो ड्राई हेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। देखिए बेटा, चार्ज दो तरीके का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दे आर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को रब करता हूं, ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, तो इनिशियली इन पे कोई चार्ज नहीं, नेट चार्ज इज 0। लेकिन जब मैं इसको रब करता हूं तो एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो दूसरे पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेट ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज तो बी विल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ठीक। टू चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। दो ऐसी बॉडी जिन पे चार्ज है, या तो उन पे अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा या रिपल्सन का फोर्स लगेगा। लाइक और सिमिलर चार्जेस, लाइक का मतलब एक जैसे, सिमिलर चार्जेस का मतलब भी एक जैसे। जिन पे एक जैसा चार्ज हो वो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होते हैं यानी डिसिमिलर चार्जेस होते हैं, दे अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब आप यहाँ पे देखें, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करने लगे, एक दूसरे को रिपेल करने लगे, यानी एक दूसरे से दूर भागने लगे। इस वाले डायग्राम में देखें आप, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, यानी एक दूसरे की तरफ आने लगे। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। अब तीसरा एक और डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे एक बॉडी है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों, क्योंकि इन पे सिमिलर चार्जेस है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ भी क्या है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी सिमिलर चार्जेस है, तो दे आर रिपेलिंग ईच अदर। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस हो, डिसिमिलर चार्जेस हो, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। अब यहाँ इस डायग्राम में देखिए, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज,
ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल में ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो दे आर रिपेलिंग ईच अदर। यानी सिमिलर चार्जेस चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दे विल रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज हो और एक पे नेगेटिव चार्ज हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। कुल मिला के चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होता है। अगर सिमिलर चार्जेज है तो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट चार्जेज हैं यानी डिसिमिलर चार्जेज हैं यानी अनलाइक चार्जेज हैं तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने एक तो पढ़ा सम डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना, दूसरा हमने पढ़ा कि स्टैटिक चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं यानी चार्जिंग बाय रबिंग। तो ऑब्जेक्ट को रब करने के बाद इलेक्ट्रीफाई हो जाता है। तीसरा हमने पढ़ा कि चार्जेस के कौन से टाइप्स होते हैं और उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।